everyone, welcome back to my channel, welcome back to DPD World Teaching. I'm Samra Mughal and in this video I'll be covering the muscle attachment of hip bone in 3 parts, which means that in this part I'll only be covering the muscle attachment on ilium. So without any further ado, let's get on with the video. Okay, so the first thing that comes in ilium is the anterior superior iliac spine, which is the anterior end of the iliac crest. This is something that we have already discussed in our previous video. इस पे हमारे पास 2 चीज़ों की अटैचमेंट होती है. एक होती है एक लिगामेंट की अटैचमेंट जिसको बोलते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट. सो हमारे पास ASIS पे लेटरल एंड ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट की अटैचमेंट होती है, यानी इनग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल एंड की. उसके साथ साथ एक मसल ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द ASIS, यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से सार्टोरियस मसल की ओरिजिन होती है. So in short, anterior superior iliac spine gives attachment to the lateral end of the inguinal ligament, and it also gives origin to the sartorius muscle. Okay, so let's move on to the iliac crest. So iliac crest is basically the upper part of ilium. It is further divided into 2 segments, ventral segment and dorsal segment. Ventral segment is basically the larger segment of the iliac crest, and dorsal segment is basically the smaller segment of the iliac crest. So we'll discuss the ventral segment first and the attachment of the ventral segment first. This ventral segment has got 3 lips on it: the outer lip, the intermediate lip, and the inner lip. Okay, let's discuss the muscle attachment of the outer lip of the ventral segment of the iliac crest. Outer lip gives attachment to the fascia lata, which is basically a fascia. It is attached on its entire length. So क्या कह रहे हैं कि हमारा जो fascia lata है वो basically किस पे उसकी attachment किस पे हो रही है? outer lip पे हो रही है, उसकी पूरी length पे हो रही है fascia lata की attachment. उसके अलावा हमारा outer lip basically gives origin to tensor fascia lata. ये एक मसल है जिसको origin देता है कौन? हमारा outer lip, यानी हमारे tensor fascia lata की origin हमारे outer lip से होती है. It originates from the outer lip of the ventral segment of the iliac crest in front of the tubercle. Then we have another muscle which is external oblique muscle. Basically हमारे outer lip पे external oblique muscle की insertion होती है, यानी इसकी origin कहीं और से हो रही होती है और इसकी insertion कहीं मतलब insertion यहाँ outer lip पे हो रही होती है. So origin we'll be discussing in other video जिसमें उस external oblique की हम बात करेंगे. Another muscle that takes origin from the outer lip of the ventral segment of the iliac crest is basically latissimus dorsi. हमारा outer lip से latissimus dorsi की origin होती है और basically originate कहाँ से होता है? हमारे iliac crest जो होता है उसका high point के behind से, यानी हमारे iliac crest का जो high point था that was between the lumbar vertebra, third and fourth lumbar vertebra. उसके पीछे से origin होती है किसकी? latissimus dorsi की. Okay, so an easy way to learn the attachments on the outer lip of the iliac crest is this mnemonic, जिसको बोलते हैं फेल्टी. अगर आपको ये फेल्टी वर्ड याद रह जाए तो आपको हमारी outer lip की attachments याद रह जाएंगी. F stands for fascia lata, which is a fascia जो attachment होती है जिसकी outer lip पर. E stands for external oblique muscle, which takes origin from the outer lip of the iliac crest. L stands for latissimus dorsi, which is basically inserted into the outer lip of the iliac crest. T stands for tensor fascia latae, which takes origin from the outer lip of the iliac crest. And then last but not least, I stands for iliotibial tract, which also is attached on the outer lip of the iliac crest. Let's move on to the intermediate lip, which is another lip of the ventral segment of the iliac crest. यानी मैंने बताया था हमारे ventral segment में 3 lips हैं. Outer lip जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं intermediate lip. So intermediate lip पे हमारे पास एक ही मसल है जिसकी origin होती है, वो है हमारा internal oblique muscle. So intermediate lip के anterior 2/3 से कौन origin लेता है? हमारा internal oblique muscle. So the internal oblique muscle takes origin from the intermediate lip or from the anterior 2/3 of the intermediate lip. फिर हमारे पास हमारे वेंट्रल सेगमेंट का लास्ट लिप आता है जिसको बोलते हैं इनर लिप. इस पे हमारे पास 2 मसल्स की ओरिजिन होती है. एक होता है हमारा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल जो ओरिजिन लेता है इनर लिप से. कौन से पार्ट से? एंटीरियर 2/3 से. और दूसरा जो मसल हमारे पास आता है वो होता है क्वाड्रेटस लैम्बोरम
which also takes origin from the posterior 1/3 of the inner lip. यानी एंटीरियर 2/3 से कौन ओरिजिन ले रहा है? ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल. और पोस्टीरियर 1/3 बचा हुआ जो पार्ट है उससे कौन ओरिजिन ले रहा है? क्वाड्रेटस लंबोरम. सो हियर आर वेंट्रल सेगमेंट एंड्स. लेट्स मूव ऑन टू द डोर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट. डोर्सल सेगमेंट पे हमारे पास दो स्लोप्स होते हैं. जिस तरह वेंट्रल सेगमेंट पे लिप्स थे, हमारे डोर्सल सेगमेंट पे दो स्लोप्स होते हैं. एक होता है लेटरल स्लोप, एक होता है मीडियल स्लोप. लेटरल स्लोप से एक मसल की ओरिजिन होती है जिसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, और मीडियल स्लोप से एक मसल की ओरिजिन होती है जिसको बोलते हैं इरेक्टर स्पाइने. सो लेटरल स्लोप गिव्स ओरिजिन टू द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड मीडियल स्लोप गिव्स ओरिजिन टू द इरेक्टर स्पाइने मसल. रिमेंबर वन थिंग कि ग्लूटियस मैक्सिमस की जरूरी नहीं है कि ओरिजिन सिर्फ इधर से ही हो रही है. नहीं, इसकी 2-3 और भी जगह हैं जहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है. सो क्योंकि अभी हम सिर्फ डोर्सल सेगमेंट डिस्कस करें, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओरिजिन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस डोर्सल सेगमेंट की सिर्फ. Okay, so now let's move on to the anterior inferior iliac spine. Anterior inferior iliac spine is the part of the ilium which is present below the anterior superior iliac spine. This is anterior inferior iliac spine. ये वो पार्ट है हमारे इलियम का जो कि हमारे ASIS यानी anterior superior iliac spine के नीचे मौजूद होता है. अब it is also further divided into two halves, upper half and lower half. Upper half से हमारे rectus femoris के straight head की origin होती है. रिमेंबर कि हमारा रेक्टस फेमोरिस एक मसल है जिसके दो हेड्स होते हैं. एक होता है रिफ्लेक्टेड हेड, उसकी ओरिजिन कहीं और से होती है, वो विल डिस्कस इन लेटर इन द वीडियो. और एक होता है स्ट्रेट हेड. सो स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. द लोअर हाफ ऑफ द स्पाइन गिव्स अटैचमेंट टू द इलियोफेमोरल लिगामेंट. यानी हमारे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन का जो लोअर हाफ है वो वहाँ पे हमारे इलियोफेमोरल लिगामेंट की अटैचमेंट होती है. तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पे दो ही चीज़ें पढ़ी हमने. वो क्या कि हमारे स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस ओरिजिन लेगा अपर हाफ से, और लोअर हाफ पे इलियोफेमोरल लिगामेंट की अटैचमेंट होगी. देन वी हैव द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच. यानी अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच पे किसकी अटैचमेंट होती है? ग्रेटर शियाटिक नॉच के अपर बॉर्डर पे पिरिफॉर्मिस के फ्यू फाइबर्स ओरिजिन लेते हैं. पिरिफॉर्मिस एक मसल है. इट इज द मसल दैट डिवाइड्स द ग्रेटर शियाटिक नॉच इनटू अबव एंड बिलो. ये वो मसल है जो कि हमारे ग्रेटर शियाटिक नॉच को अबव एंड बिलो डिवाइड कर देता है. सो इसके कुछ फाइबर्स कहाँ से? ग्रेटर शियाटिक नॉच के अपर बॉर्डर से ओरिजिन लेते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द अटैचमेंट्स ऑन द ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम. हमें पता है हमारे इलियम की दो सर्फेसेस होती हैं. एक होती है ग्लूटियल सरफेस जिसको आउटर सरफेस भी बोलते हैं, और एक होती है इनर सरफेस या पेल्विक सरफेस. सो पहले हम ग्लूटियल सरफेस के अटैचमेंट्स की बात करते हैं. वी ऑल नो दैट आवर ग्लूटियल सरफेस या ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम इज डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज बाय 3 ग्लूटियल लाइन्स. द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन. पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बिहाइंड जो एरिया होता है वहां से हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस की ओरिजिन होती है. पीछे हमने ग्लूटियस मैक्सिमस की ओरिजिन पढ़ी लेटरल स्लोप ऑफ द डोर्सल सेगमेंट से, वहां से भी ओरिजिन होती है. और ग्लूटियस मैक्सिमस की ओरिजिन पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बिहाइंड से भी होती है. तो ये बात मैं उस वक्त बता रही थी कि इसकी ओरिजिन जो होती है वो अलग अलग जगहों से होती है. Then the area between the posterior gluteal line and the anterior gluteal line gives origin to gluteus medius muscle. यानी कि हमारे जो posterior gluteal line है और anterior gluteal line है, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एरिया है उधर से हमारे पास एक मसल की ओरिजिन होती है, उसको बोलते हैं gluteus medius muscle. So the gluteus medius muscle takes origin from the area which is present between the posterior gluteal line and the anterior gluteal line. Now, हमारे anterior gluteal line और inferior gluteal line के दरमियान भी एक एरिया मौजूद होता है जहाँ से gluteus minimus origin लेता है. So gluteus minimus is the third gluteal muscle which takes origin from the area between the anterior gluteal line and the inferior gluteal line. And please remember कि जो inferior gluteal line है, it is the ill-defined line, यानी it can't be identified. Okay, let's move on to the attachment on the inner surface
और द पेल्विक सर्फेस ऑफ इलियम. अच्छा, इनर सरफेस पे जहां से मसल्स की ओरिजिन हो रही होती है वो एक इलियक फोसा होता है, जहां से हमारे पास इलियकस मसल की ओरिजिन होती है. सो इलियकस मसल इज द मसल दैट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द इलियक फोसा. और बाकी की जो हमारी पेल्विक सरफेस होती है या हमारी इनर सरफेस होती है वो ओरिजिन देती है हमारे ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल की अपर हाफ को. सो द रेस्ट ऑफ द पेल्विक सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द अपर हाफ ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल. So this was all about the muscle attachments of ilium. Hope you all understood my video. Hope you liked it. Please share my video as much as you can, and please subscribe to my channel. And we'll be discussing the muscle attachment of pubis and ischium in other 2 videos. Thank you so much for watching my video.